جناب والا، شروع میں ایک فکرے میں سارا بجٹ جو ہے سموتا ہوں کہ عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا۔ آج بھی جو نواز شریف ٹیکس ریونیو چھوڑ کے گیا ہے، آج بھی یہ نیا پاکستان، عمران خان کا نیا پاکستان اس کو عبور نہیں کر سکا اس حد کو۔ ہم نے تقریباً ڈبل کیا ریونیو جو ہے اپنی 5 سال کی حکومت میں۔ یہ ابھی رینگ رہے ہیں، ایڑیاں ڈر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن اس حد کو آگے عبور نہیں کر پا رہے۔ یہ سم ٹوٹل ہے ساری اکنامک ایفرٹس کا۔ آج بنگلہ دیش کو دیکھیں، کوئی انڈیکیٹر لے کے دیکھیں، بنگلہ دیش جو ہے آج سے کتنے 50 سال پہلے وہ ہم سے جدا ہوئے تھے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، تمام انڈیکیٹرز جو ہیں دے آر اہیڈ آف اس۔ انہوں نے جو پبلک کے اوپر پیسہ کا بیچ میں جو پرسنٹیج رکھی ہے، دیٹ از دا ہائیسٹ، آئی تھنک اٹس 19%۔ عوام کے لیے ہمارے یہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے۔ ایک صحت مند قوم اور ایک تعلیم یافتہ قوم سب سے بڑا ایسٹ ہوتی ہے کسی ملک کا۔ وہ دوام بخشتی ہے کسی ملک کو، کسی قوم کو۔ یہودیوں کی 3000 سال پرانی جو تاریخ ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے، اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہیں علم کا ساری دنیا میں وہ ڈسپرس ہو گئے، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، انڈیا میں، افریقہ میں۔ They were dispersed all over the world. But one thing they did not leave, and that was knowledge. And that is why they are ruling the world now. کوئی ضروری نہیں کہ وہ ٹائٹل پریزیڈنٹ بنا دیں اپنا، وہ پریزیڈنٹ بناتے ہیں، ان کو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکانومیاں بناتے ہیں بیکاز آف دا نالج۔ آپ نے کیا رکھا ہے اس بجٹ میں؟ کیا رکھا ہے تعلیم کے لیے؟ اس بجٹ میں کیا رکھا ہے آپ نے صحت کے لیے؟ کورونا تو ایک فلو ہے، اس نے ہماری اکانومی کا کیا بگاڑنا تھا؟ یہ میں جو ہے یہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فلو ہے، گھبرانا نہیں۔ تو اب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ آج تو حقیقت کا سامنا کریں۔ ہماری اکانومی آلریڈی سنک ہو چکی تھی جب کورونا یہاں پہ آیا ہے۔ جناب اسپیکر، اکانومی سنک ہو چکی تھی۔ ایک انڈیکیٹر نہیں جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ ہماری اکانومی کی سمت درست تھی۔ حالات تھے جس سے کوئی حوصلہ ملتا، جس سے کوئی آسرا ہوتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فائنانس ٹیم کا ماضی دیکھ لیں۔ لاسٹ ٹائم when Hafiz Sheikh Saab left this country or left the portfolio of finance, the budget deficit was 8.8%. اس دفعہ انہوں نے 9.1 لے آئے ہیں، اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30 جون کے بعد یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ جناب والا، یہ لیکوڈیٹر ہیں، یہ ہو گیا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو گیا، یہ ہماری اکانومی کے، ہمارے وطن کے لیکوڈیٹر ہیں، IMF کی طرف سے آئے ہوئے، اور اب لیکوڈیٹر بھی نہیں رہے، اب یہ انڈرٹیکرز بن گئے ہیں۔ بجٹ آپ نے تیار کیا ہے، ابھی تک IMF کے ساتھ اس وقت نیگوشیشنز ہو رہی ہیں۔ یہ انٹرم بجٹ ہے، یہ ایک منی بجٹ اور آئے گا اور ٹیکسز بھی لگیں گے۔ آپ کیوں لے کے آتے ہیں ان مرسنریز کو؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں،
लेजिटिमेसी है इनके पास, इनके क्रेडेंशियल्स हैं, इनको क्यों? यहां पे ऐसे लोगों की भरमार है जिनके पास असल ताकत है, जिनके पास अवाम का वोट नहीं है, लेकिन ताकत उनके हाथ में दी गई हुई है। जनाब स्पीकर, ये नफी है जमहूरियत की, पार्लियामेंटी जमहूरियत की नफी है। आप देखें, मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं करना चाहता, ये बजट जो है ये एक मैसिव रिट्रीट है, मैसिव रिट्रीट है। हुकूमत माशी फ्रंट के ऊपर पसपाई इख्तियार कर रही है, और इट्स नॉट ओनली पसपाई, बल्कि शिकस्त का ऑलरेडी एक कहा नहीं गया, लेकिन उसको तस्लीम कर लिया गया। दूर दूर तक आपको आसार नहीं नजर आते कि आपकी इकोनॉमी जो है, गवर्नर स्टेट बैंक से हम पूछते रहे कि जनाबे वाला, ये तो बताएं ये हॉट मनी कहां से आई है? अब चली गई है, वैसे आई थी, चली गई है। 13.5% रेट उन्होंने कमाया। वो कौन कौन लोग यहां पे लाए गए और कौन कौन लोग हैं, वो उनके नाम बताए जाएं इस ऑगस्ट हाउस को, जिन्होंने 3 बिलियन से ऊपर डॉलर जो है यहां पे लाए और 13% अनहर्ड ऑफ इन इंटरनेशनल मार्केट पैसा कमाया और एग्जिट कर। मेरा है 300 के 400 बिलियन इस वक्त उसमें से पड़ा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से, हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ईसीएल पे डाल दें, ताकि ये बाद में चले ना जाएं। अगर वतन से मोहब्बत है तो खुदा के लिए मैं अपील करता हूं, ये मेरे 3 भाई बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन्स पे, इनका दिल भी यही कहता होगा, मुझे पूरा वसूख है, इनका दिल भी ये कहता होगा कि इनको ईसीएल पे डालें। ये तीसरी दफा आया था हफीज शेख, तीसरी दफा आया हुआ। ये नवीद कमर मुशर्रफ के वक्त भी था ना। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जनाब स्पीकर, ये कौन लोग हैं? यही हमें मुतारफ करवा दें इन लोगों से। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर इनकी जगह असद उमर होता तो उसका कम से कम इस जमीन के साथ कोई रिश्ता तो है ना। उसको हजारों लोगों ने वोट तो दिया हुआ है ना, उसने दोबारा उनके पास जाना भी है। लेकिन ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, इन्होंने किसी के पास नहीं जाना, इन्होंने अपने माल पास जाना है, जिनके हुक्म से ये यहां लाए गए। डालें इनको ईसीएल पे। आप इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग, कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब the orgy of corruption goes on unabated। ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुताल्लिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है।
आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें, इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए। टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान, और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज, बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में। रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लो। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे एमएनए हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे, वो यहां पे कस्में उठाते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ आया। हाल यह है कि शहबाज शरीफ कहता रहा कि मैं कैंसर का मरीज हूं, एबिलिटी ज्यादा है आम बंदों से, मुझे किसी और तरीके से, किसी और मीडियम के जरिए मुझसे सवालात का जवाब लें। लेकिन उसको बुलाया गया वहां पे। जनाब वाला, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वक्त गुजर जाएगा। But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, तबाही और बर्बादी। जनाब डिप्टी स्पीकर, this budget is a recipe for disaster, total recipe for disaster। मैं आखिर में एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि जब इस ऐवान में आप जो मेन चीजें हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल जो हैं, उन पे मर्सनरी जो ला के बैठा देंगे, जिनका पिछले 15, 16, 17 साल में ट्रैक रिकॉर्ड अभी इस मुल्क में फ्रेश है, सबको जुबानी याद है, मैंने फिगर्स भी बता दिए हैं। With no allegiance to this soil, no allegiance। मैं किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, लेकिन अगर वो वर्कर है या एक प्रोसेस के जरिए वो एलिवेट हुआ है, नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, मैं उसकी इज्जत करता हूं।
because he has proper credentials. पर ये लोग जो हैं इनके तो कोई credentials नहीं है. मैंने आपको बताया है, मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस शेख दोनों को ECL पे डालें, और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे. आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे. 11 IPPs जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन किए उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले IPP साइन 11. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं यहां पे रख रहा हूं. 550 मेगावाट टोटल बनती है. 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के IPPs साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं. I have everything copy paste है.